प्रार्थना में सब समय प्रभु की बड़ाई करता है। Amen। जो सब समय परमेश्वर की बड़ाई करता है वो किसी की बुराई नहीं कर सकता। যে সব সময় ঈশ্বরের মহিমা করে ও কারোর নাম এইভাবে আলোচনায় নিয়ে আসতে পারে না। Amen। हालेलुया। जो परमेश्वर का सम्मान करता है वो सबका सम्मान करता है। Amen। Hallelujah। I welcome you in the house of God। ये क्या ही भली बात है कि जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं। It's what a great opportunity for you and for me to be in house of God। Amen। उसकी सेवा करते हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम, आओ हाथों को उठाए हम, आओ हाथों को उठाए हम, आओ हाथों को उठाए हम, प्रभु की उसकी सेवा करते हम। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 15 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। द बुक ऑफ जॉन, अ गॉस्पेल ऑफ अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। I am the true wine। Amen। मैं सच्ची दाखलता हूं। Amen। और मेरा पिता किसान है। आज हम देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर से जुड़े हुए रह सकते हैं। Amen। आज मेरा सरमन है फ्रूट एंड हाउ वी विल गेट द फ्रूट। हम कैसे फल ला सकते हैं, আমরা কিভাবে ফল আমাদের জীবনে আনতে পারি। We are the tree but we don't have fruit। যদি আজকে আমরা বলছি কি yes আমরা একটা গাছ আছে কিন্তু ওই গাছে যদি ফল নেই, that is a useless, that is a worthless। but we will learn today। আমরা আজকে सीखबो, हम आज सीखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में बहुत सारे फल होना चाहिए। पर उससे पहले परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आपके बगल में है, उससे कहें परमेश्वर आज मुझसे कुछ कहना चाहता है। आपने बोल दिया? बगल वाले ने क्या कहा? कुछ नहीं बोला? ओके। तो शायद उसे भी परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। आमीन। So let's learn together। 15 और 2 के पढ़बे। Next verse। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। আমাতে স্থিত যে কোনো শাখায় ফল না ধরে তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিয়া দেন, এবং যে কোনো শাখায় ফল ধরে তাহা পরিষ্কার করেন যেন তাহাতে আরো অধিক ফল ধরে। আমেন। Every branch in me and does not bear fruit he takes away, and every branch that bear fruit he prunes it so that it may bear more fruit। এখানে দুটো ক্যাটাগরি আমরা দেখছি। একটা আমরা দেখছি কি ঈশ্বর কি করছেন, what God is doing here, he is removing unfruitful branches। Amen। एखाने यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल नहीं है उसे काटा जा रहा है। Amen। যদি আজকে আপনার বাড়িতে যদি আপনার জীবনে এরকম কিছু জিনিস আছে যদি is not fruitful, जब you know this is very
a very painful process. যখন আপনার জীবনে যদি এরকম কিছু জিনিস আছে যেগুলো ফ্রুটফুল হচ্ছে না, আমরা ওটা বাদ দিয়ে দিই। আর যখন আমরা বাদ দিই এটা কষ্ট হয়। Amen. But we have to do it. আমাদেরকে এটা করা উচিত। কিন্তু নেক্সট কি বলছে? নেক্সট বলছে যেই গাছে ফল আছে, Amen, और जो फलती है उसको भी पेनफुल प्रोसेस से जाना पड़ता है। Amen. बाइबल बताती है कि जो फलता है उसको भी काटना पड़ेगा, उसे भी छांटना पड़ेगा, कहीं वो गलत तरह से बड़ा ना हो जाए। Amen. The process is painful. যদি আজকে আপনার জীবনে ফল আছে, তারপরেও ঈশ্বর চাইছেন আপনাকে ডিসিপ্লিন করতে। Amen. কেউ যদি বলছে কি আমার লাইফে তো সব ঠিক আছে, আমি প্রভুতে ঠিক আছি, আমি ঈশ্বরে ঠিক আছি, আমি সত্যি কথা বলি সব সময়, আমি কোনো ভুল বাজে সঙ্গতিতে নেই, আমার কোনো ব্যাড রেপুটেশন নেই, সব ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও প্রভু কেন এরকম কষ্ট আমার জীবনে দিচ্ছে? उसके बाद भी प्रभु क्यों मेरे जीवन में कष्ट दे रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Amen. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। That's why He prunes it. Amen. इसीलिए वो आपको काटता है और छांटता है ताकि आप और भी सुंदर दिखो। Amen. हम बड़े तो हो रहे हैं, আমরা বড় তো হচ্ছি, আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি, but what God is observing your life, ঈশ্বর আপনার জীবনে কিভাবে অবজার্ভ করছে, ঈশ্বর দেখছে আপনার জীবনে ফল, কিন্তু তারপরে ঈশ্বর বলছেন না না, এই ফলটা তুমি বড় তো হচ্ছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু দেখতে একটু ভালো লাগছে না। Have you seen gardener? आपने कभी गार्डनर को देखा है? माली? कभी देखा है उसको काम करते हुए? पानी देते हुए देखा है? चारा देते हुए देखा है? देखा है? आपने देखा है? आपने उसके हाथ में वो बड़ा वाला कैंची देखा है? वो भी होता है ना? प्यार भी करता है, सब कुछ करता है, परंतु उसे काटता भी है। Amen. प्रभु हमारा सच्चा किसान है। अगर आपके घर में, आपके जीवन में अगर कोई गलत तरह से कोई डाली अगर बड़ी होती है, तो प्रभु उसको काट देता है। और आप बोलते मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो परमेश्वर में हूँ, मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, फिर प्रभु ने ये आशीष मुझसे क्यों छीन ली? Amen. কেন প্রভু এরকম করছে আমার জীবনে? কেন প্রভু আমার জীবন থেকে এই আশীর্বাদ নিয়ে নিয়েছে? আমাকে অনেক ভালো লাগতো এই জিনিস, मुझे बहुत पसंद था वो चीज, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो व्यक्ति, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये रिलेशन, क्यों प्रभु ने मुझसे छीन लिया? क्यों प्रभु ने मुझसे ले लिया? It's pruning you. वो आपको छांट रहा है। Amen. ताकि आपके अंदर और भी फल आए। बहुत बार अच्छी नौकरी आपके जीवन से चली जाती है। Amen. प्रभु वो नौकरी आपको लेने नहीं देता, क्योंकि प्रभु आपके नजर में वो बहुत अच्छा है, परंतु प्रभु आपको और भी अच्छा सोच रहा है। Amen. Sometimes we feel why Jesus, কেন প্রভু এরকম হলো না? কেন প্রভু সেই দিন আমি কোর্টে গেলাম আর সেই দিন কেন জজ সাহেব আমাকে ওই ফয়সালাটা দিল না যেটা আমার পক্ষে ছিল? Amen. আমরা বলি কেন প্রভু এরকম হলো? Maybe after 2 years, after 6 months, 6 मास, 5 महीना, 1 साल बाद आपको समझ में आता है और आप बोलते हो ओह थैंक यू जीसस। Amen. बहुत सारी चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती है मेरे प्रियो। पेड़ को तो अच्छा लगता है कि फल हो, परंतु माली को पता है कि ये पेड़ सुंदर कैसे दिखे। आज परमेश्वर आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में फल है तो भी प्रभु आपको काटेगा। Amen. और अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो पूरा काटेगा। Amen. क्योंकि पेड़ में जान होता है ना, पेड़ में जान होता है। When the farmer, when the gardener prunes the tree, it's painful thing. जब आज प्रभु आपको ठीक कर रहा है
जब आज प्रभु आपको सही राह पर लेके आ रहा है, आज प्रभु आपको ऐसा लगता है कि সবাই আমার বিরুদ্ধে কেন হয়ে গেছে, হঠাৎ কেউ বিরুদ্ধে যাচ্ছে না আপনার। God is pruning you, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है, आमेन, ताकि एक दिन आप सुंदर दिखो, आमेन, हालेलुया, क्योंकि वो गार्डनर उस पेड़ से प्यार करता है। आज यीशु भी हमसे प्यार करता है, आज प्रभु भी हमसे बहुत प्यार करता है, आज प्रभु भी चाहता है कि हम सुंदर दिखें, आज प्रभु भी चाहता है कि दूर से हमारे फैमिली को अगर कोई देखे तो बोले यस दिस इज अ परफेक्ट फैमिली, आमेन, कोई दूर से भी देखे बोले ये एकदम सही परिवार है। अगर आज आपका बेटा का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आज आपके परिवार में कुछ हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है, इसका मतलब है कि ही इज प्रूनिंग समथिंग, आमेन, प्रभु कुछ कर रहा है। परंतु कुछ माँ बाप तो ऐसे भी हैं कि बच्चा गलती करता है, परंतु कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु उसके सामने जब गलती करता है, अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसके बच्चे को गलत बोल देता है तो हम लोग लड़ाई करने चले जाते हैं, है ना? কেন আমার ছেলেকে তুমি বলেছো এরকম? হ্যাঁ, তুমি ওকে কি খাওয়া দাও? ও কি তোমার বাড়িতে থাকে? কেন তুমি বললে? अरे धन्यवाद दीजिए, आपका मुंह तो बंद है, कोई तो बोला? हाँ, আপনি তো বলতে পারেন না, আপনাকে তো একদম ভয়, তুমি যদি বলবে আমি এখন रेल लाइने चले যাব, तो सारा जीवन तो आपका मुंह बंद करके रखा, कोई तो बोल रहा है, आमेन, और वहां हम अपने बच्चे का सपोर्ट करते हैं, बच्चा भी क्या खुश, क्योंकि भी हम सच में अपने बच्चे को प्यार नहीं करते मेरे प्रियो, आमेन, हम नहीं प्यार करते, ये प्यार नहीं है, इसे प्यार नहीं कहते हैं। आप तो अपने बेटे को खाई में ऐसे धक्का दे रहे हो क्योंकि आप उसकी गलती में खड़े हो, परंतु प्रभु क्या कहता है, अगर कोई फल फलता भी है, अगर थोड़ा गलत तरह से भी फलता, प्रभु उसको काटता है। परंतु आपके संतान तो गलत दिशा में बढ़ रहा है, परंतु अगर कोई बोल भी रहा है तो आप उसके मुंह को बंद कर दे रहे हो और बोल रहे ना ना हमारे ছেলে ভালো আছে, पर हमें पता है मेरा बच्चा कैसा है, आमेन। आज प्रभु भी हमें गलत तरह से बढ़ने नहीं देना चाहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक ऐसा क्यों हो गया? ऐसा प्रभु ने किया है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, धर्मियों के लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है, आमेन। Those who are righteous, जो धर्मी है, যারা ধর্মী আছে ওদের জন্য সবকিছু আমাদের ভালোর জন্যই হচ্ছে, everything whatever God is doing। आज परमेश्वर अगर आपके बच्चे को प्रून कर रहा है, thank God, आमेन, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके संतान को ठीक कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को ठीक कर रहा है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। He is removing unfruit branches and pruning the fruitful one also, amen। बहुत बार আমি যখন মিনিস্ট্রি করছি, প্রভু সেবা করছি, যখন এরকম কিছু জিনিস হয় যেটা আমি চাইছি না, কিন্তু আমি বলছি প্রভু এটা এরকম কেন হলো, then God reminds me, ঈশ্বর আমাকে স্মরণ করায়, আরে তুমি ভুলে গেছো আমার বাক্য, तुम भूल गया मेरा वचन कि जो फल फलता भी है तो भी प्रभु उसे काटता है, क्या करता है? काटता है, ताकि वो सुंदर दिखे, आमेन, हालेलुया। You know, I remember one thing, क्लास 7 में, जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था तो उस समय मैं बहुत घूमता फिरता, जैसे जैसे आज बच्चे लोग होते हैं वैसा होता है। तो क्लास 7 में जब मुझे रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट जैसे ही मिला मैं रिजल्ट लेकर आया, मैं बोला ये क्या, मैं 2 नंबर से फेल हो गया, ये कैसे? तो मैं अपने
मुझे जो ट्यूशन पढ़ाता था वो स्कूल का टीचर भी था, तो मैंने बोला सर कुछ कीजिए ना, 2 नंबर पढ़ा दीजिए। मैंने सर बोल रहा है ये कैसे हुई, जाओ। हम बोला सर हमको भूल गए, हम आपका स्टूडेंट। हाँ ठीक है, पर ना भाई ये नहीं हो सकता है, 2 नंबर हम बढ़ा नहीं सकते, तुम फेल हो गया है। उस दिन मुझे समझ में आया कि पढ़ाई किसे कहते हैं। और सबसे ज्यादा डर कहाँ है? घर में जाने का। सबसे ज्यादा डर घर में है, क्योंकि मुझे मालूम है बेलन से मारेगा, लाठी से मारेगा, बेल्ट से मारेगा, उठा के मारेगा, फेंक के मारेगा, किससे मारेगा नहीं मालूम। अभी के बच्चे लोग को मार नहीं पड़ता है। हमारे जमाने में क्या होता था, आप बहुत लोग हैं जो अगर अभी कोई बच्चा अगर गिर जाता तो छोना गिर गया, क्रीम लगा दे, मलहम लगा दे। और उस समय अगर कोई बच्चा गिर जाता था, चल नहीं सकता है, चल, और गिरा तो गिरा और फेंक देता था उठा के। You remember? In those days, যখন এখন যদি কেউ বাচ্চা পড়ে যায়, अरे हमारा सोना पड़ेगा। और जब हम लोग कभी गिर जाते थे, আমরা যখন পড়ে যেতাম কোনো রাস্তায়, আমার মা বাবারা কি করতো, ঠিক করে চলতে পারে না, और मार, एक तो लग गया खून निकल रहा है और मार। You know those days. अभी तो स्कूल के अगर ट्यूटर्स जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वे भी कुछ बक नहीं सकते हैं। बच्चे आके बोलते हैं मम्मी टीचर ना बहुत डांटी। हाँ डांटी, इतना हिम्मत। अब पहले क्या होता था, हम लोग खुद बोलते थे कूट देना अच्छा से, हम ही लोग बोलते थे, मतलब हमको बोला जाता था हमारे टीचर। अब मेरा जो टीचर था ब्लेड लेके आता था, ब्लेड। हाँ काटेंगे, अभी काटने नहीं मास्टर जी नहीं काट, अभी काटने मास्टर जी नहीं काट। हाँ लिख रहे और गलती ना अब तो गलती नहीं करेंगे। कभी कभी ब्लेड ऐसे हल्का सा लगा भी देता था। ओ बाबा, तो घर में जाके बोलते थे तो बोलता था कहाँ काटा ही नहीं, काट देता तुम लोगों को, तुम लोग जैसा बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे वो कहीं भी मतलब सर ऐसे रख के रोने का जगह नहीं था, जहां रोएंगे और मार पड़ता था, है ना। पर परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करने के लिए प्रभु हमारे गलत ब्रांच को काटता है। आमीन। अगर हम गलत तरह से बढ़ रहे हैं, याद रखना प्रभु आपको देख रहा है। अगर आप कहीं से भी गलत बढ़ रहे हैं, चाहे आपका नौकरी ही परमेश्वर को क्यों लेना पड़े, प्रभु ले लेगा उसे। चाहे परमेश्वर आपको बीमार कर दे तो वो बीमार ही करेगा, परंतु प्रभु आपको गलत तरह से बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। क्योंकि प्रभु को पता है इस रास्ते पे अगर ये चलेगा तो इसका जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए परमेश्वर ही prunes it। आमीन। वो हमें काटता है, वो हमें सही राह पर लेकर आता है। अगर आप किसी को डिसिप्लिन करो तो वो आपसे नफरत करेगा, परंतु अगर बुद्धिमान है तो आपसे प्यार करेगा। आमीन। যদি আপনি কাউকে যদি বকাবকি করেন, যদি ও যদি মূর্খ আছে, ও রাগ করবে। आमीन। आज बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के डांट को समझ नहीं पाते हैं, परंतु यही बच्चे एक दिन समझेंगे, परंतु उस समय बहुत देर हो जाएगा। आज मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करो, बेटी ऐसा नहीं करो,
तो बेटा को लगता है मेरा मम्मी पापा मेरा दुश्मन है ना? पर बच्चों आपको बाद में पता चलेगा कि ये जो डिसिप्लिन है इसका वैल्यू क्या है। आमेन। আজকে ঈশ্বরও আমাদেরকে ডিসিপ্লিনে আনতে চাইছেন। আজকে ঈশ্বর আমাদের জীবনকেও ডিসিপ্লিনে আনতে চাইছেন। एंड ही वांट्स, उनर एकटाई इच्छा আছে कि हमें अगर कोई दूर से देखे तो बोले हाँ ये एक अच्छा फल है। आमेन। ये एक अच्छा फल है। नेक्स्ट वर्स 3 The third point is cleansed by the word. बाइबल बताती है you are already clean because of the word which I have spoken to you. Amen. You are clean. The Greek word katharizo, to clean, and can translate to prune. Amen. Actually the এই যে ওয়ার্ড আমরা ইউজ করছি এখানে ক্লিন, অ্যাকচুয়ালি গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে এখানে আছে ক্যাথারিজো। দ্য অরিজিনাল ওয়ার্ড যদি আমরা গ্রিক বাইবেল পড়ি সেই জায়গায় আছে ক্যাথারিজো। ক্যাথারিজো মিনিং হচ্ছে রুম। ইট ক্যান বি ট্রান্সলেট। কেন অনেক জায়গায় ওয়ার্ড পাওয়া যায় না, দেন দে পুট আ ক্লিন। ইটস নট আ ক্লিন, ইট ইজ আ প্রুন। আমেন। And that prune says, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो? शुद्ध हो। Let's turn with me book of John 8:31। जो प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन में क्या रहो? अगर बने रहो तो तुम क्या बन सकते हो? चेले। Amen। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है, शुद्ध करता है। आमेन। क्योंकि उसका 8:31 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, अद्भुत वचन है कि तब यीशु ने उन यहूदियों में से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम प्रभु में बने रहोगे, आमेन, अगर तुम प्रभु में बने रहोगे तभी कुछ हो सकता है। आमेन। Amen. If you remain in me, then something can happen. If you do not, then I don't know. Amen. If you remain, अगर आप प्रभु में बने रहोगे तो कुछ हो सकता है। अगर आप प्रभु में बने नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। Amen. यीशु ने उससे क्या कहा? अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम क्या बन सकते हो? क्या बन सकते हो? नेक्स्ट वर्स क्या लिखा है? 32 और उसके बाद नेक्स्ट वर्स पढ़ो 34। जो कोई पाप करता है वो कौन है? आमेन। जो पवित्र काम करता है वो परमेश्वर का दास है। जो पाप करता है वो किसका दास है? आमेन। हालेलुया। रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, যদি আপনি পাপ করছেন এই পাপ কিন্তু আপনাকে কোনোদিন ছাড়বে না। এই পাপ, আমরা যা ভুল কাজ করছি, এই ভুল কাজ, এই শাস্তি কেউ নেবে না, আপনাকেই নিতে হবে। আমেন। যদি আজকে আপনি চুরি করেন আপনার ওয়াইফ ওই শাস্তি নিতে পারবে না। আমেন। एक बहुत पुराना I think long time back I said this story in 2014 में मैंने चर्च में ये स्टोरी कहा था। महाराष्ट्र के एक जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था और वो डाकू बहुत लोगों को लूटता था। शादी में जाकर या किसी के घर में जाके, all those things that fellow used to do, वो ये सब काम करता था। बहुत सारे पैसे लेकर आता था, बहुत सारे कुछ लेकर आता था। तो एक दिन उसको एक प्रभु का दास मिला और वो प्रभु का दास उस डाकू को कहता है कि महाशय आप जो ये करते हो, एक सवाल आपसे पूछता हूं। तो डाकू बोलता है मैं इतना बात किसी से नहीं करता, मैं तुझे अभी मार दूंगा। तो उसने कहा मुझे मार देना, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।
और इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो भी मार देना, और अगर जवाब नहीं है तो भी मार देना, पर मेरा सवाल आप कुछ सुन लेना। तो उस डाकू ने कहा, बोलो क्या सवाल है? उसने कहा कि आप ये जो भी काम करते हो, आप अपने परिवार के लिए करते हो, ये सब कुछ आप अपने परिवार को दोगे? जो भी धन संपत्ति जो भी आप लूटते हो, आप सब अपने फैमिली को दोगे? तो उसने कहा हाँ। पर उसने कहा मेरा सवाल ये है, আমার প্রশ্ন এটা, क्या आप जो भी करते हो उसका जो पनिशमेंट है, जो दोषारोप है, जो पाप है, क्या आपकी वाइफ, क्या आपके बच्चे उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? ये डाकू ने कभी सोचा ही नहीं था ये बात। तो उसने उस व्यक्ति को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, बोला ठीक है जाओ। वो जल्दी जल्दी घर में आया, जितना लूट का सामान था वो सब फेंका, सब रख दिया वहां। उसने अपने बच्चों को बुलाया, 2 बच्चे थे उसके, अपनी वाइफ को बुलाया, बोला बैठो सब तुम लोग यहाँ। दरवाजा बंद कर दिया और बंद करके ये सवाल उन तीनों से पूछा कि कल अगर मुझे सजा होगा तो क्या ये सजा आप भी लोगे? क्या आप लोगे? तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम आपका पाप का सजा क्यों लें? अरे ये तुमने कैसे बात कर दिया? तो उसका बड़ा बेटा बोलता है हाँ पापा, ये तो तुम्हारा जिम्मेदारी है हमें खाना खिलाना, तुम कहां से लाता है ये मुझे जानने का जरूरत नहीं है, परंतु तुम जो पाप करते हो, तुम जो भी गलत काम करते हो, उसका सजा हम कभी नहीं लेंगे, तुम्हें ही लेना होगा। वो डाकू का दिल टूट गया कि मैं जिस परिवार के लिए चोरी कर रहा हूं, डकैती कर रहा हूं, परंतु इसमें मेरा परिवार शामिल नहीं है, मेरा परिवार इसको लेना नहीं चाहता, तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं क्यों कर रहा हूं? उस डाकू ने उस व्यक्ति को खोज के निकाला और कहा तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं आज ही पुलिस को सरेंडर करूंगा। और उसने अपने आप को सरेंडर किया। उसके अच्छे रिकॉर्ड के कारण पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया। सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, बहुत बड़ा डाकू था, आज वो चर्च कलिसिया में है, पता नहीं आप जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता। 2014 में मैं जानता था कि वो ऐसे चर्च आता है, परंतु अभी वो कहाँ है, जिंदा है, मर गया, ये मैं नहीं जानता। तो बाद में जब वो जेल से निकलता है तो वो कहता है कि सच में अगर कोई मेरे गुनाह और मेरे पाप को अगर कोई ले सकता है तो वो है यीशु, और कोई नहीं। आपका फैमिली आपके दुख, आपका फैमिली आपके बोझ, आपका फैमिली आपके पाप को कभी नहीं ले सकता। इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। आप जो भी करो मेरे प्रियो, आपके बच्चे आपके गुनाहों को नहीं लेंगे, आपकी वाइफ आपके गुनाहों को नहीं ले पाएगी। आमीन। क्योंकि पाप किसी को नहीं छोड़ता है। आमीन। हालेलुया। पाप किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आपने पाप किया है तो अगर एक ही चीज है जो आपको धर्मी बना सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। वही है जो आपको पवित्र कर सकता है। ईश्वर पाक को आपके पवित्र करवे, परमेश्वर का वचन आपको पवित्र कर सकता है। चाहे आपके पाप जैसे भी हो, चाहे आपके पाप जिस भी कलर के हो, अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी किया है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पाप को मान ले, ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ करे और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र कर सकता है। और सिर्फ पवित्र नहीं, परंतु बाइबल तो इतना भी
बताती है कि वो हमें अपना चेला भी बनाएगा। Amen. Hallelujah. He will not clean you. परमेश्वर सिर्फ आपको साफ ही नहीं करता है, शुद्ध ही नहीं करता है, परंतु अपने मेज में, अपने टेबल में भी बैठाता है। Amen. He wants to have a relationship with you. Amen. अगर आज आप जो भी गलत काम करते हैं, आपका फैमिली आपके संग नहीं है। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसका 1:22 और 23 में क्या लिखा है? फर्स्ट पीटर प्रथम पीटर 1:22 और 23 की बोलছে। हमें नया जन्म कैसे मिला है? परमेश्वर के वचन से। आमेन। हमें नया जन्म मिला है। যারা প্রভুতে আছে, जो प्रभु में है वो कौन है? नई सृष्टि। वो कौन है? नई सृष्टि। वो कौन है? वो कौन है? जो प्रभु में है वो कौन है? देखो पुरानी बातें बीत गई है। आमेन। तो फिर पुरानी बातों को मत लाओ। आमेन। आमेन। पुराने स्वभाव को मत लाओ, पुराने आदतों को मत लाओ, पुराने बीते हुए हर एक गलत कामों को छोड़ दो, उन्हें वापस मत लाओ। देखो सब क्या हो गई है? नहीं हो गई। क्या होता है मालूम है? जब आप कोई नया साड़ी पहनते हैं या कोई नया शर्ट पहनते हैं और उस समय आप बाहर में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा फीलिंग्स लगता है ना। नया कपड़ा पहनने से बहुत अच्छा फीलिंग्स आता है, यू नो, यू फील गुड। एंड नया कपड़ा, नया शर्ट, व्हेन यू हैव अ न्यू वॉच, सब समय टाइम देख रहे हैं आप, यू नो, व्हेन यू हैव अ न्यू स्पेक्स, जब नया चश्मा पहनते हैं तो बार-बार मोबाइल से अपने आप को देखते हैं। अभी आईने का तो जरूरत नहीं है, लोग मोबाइल में देख लेते हैं आईना, है ना। अगर ज्यादा कुछ होता है तो एक सेल्फी ले ही लेते हैं, लेके फिर जूम करके देखते हैं सब ठीक है कि सब ठीक है। पर तू सोचो, आप एक अच्छा शर्ट पहन के जा रहे हो और जैसे ही आप पुराने स्वभाव को वापस लेते हो, अब वो शर्ट आपके पास नहीं है। कौन सा शर्ट है मालूम है? रिपू किया हुआ है ना। रिपू समझते हैं? पता नहीं, अभी तो हम लोग तो रिपू कराते थे, अभी तो कोई रिपू करवाता नहीं है ना। पहले हमें कोई दिक्कत नहीं था पहले, अभी के बच्चे लोग नहीं पहनेंगे। हमारा तो अगर खेलते खेलते अगर यहाँ से अगर पैंट फट जाता था तो हम लोग रिपू करा लेते थे, यहाँ पर दूसरा कपड़ा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमें कोई। इवन कभी कभी तो पीछे भी ऐसा होता था, हाँ पीछे भी अगर हो गया तो वहाँ रिपू लगा, कोई बात नहीं, हम तो। परंतु अभी के बच्चे नहीं करेंगे। अभी के बच्चे तो बोलेंगे ये क्या मम्मी फट गई है क्या, नहीं पहनेंगे। हम तो सब चला देते थे। आप अच्छा कपड़ा पहने हो, आपका जीवन अच्छा है। जैसे ही आप कुछ गलत काम करते हो तो लोग बता रहे ये तो अच्छा कपड़ा पहना था, अचानक ये फटा कपड़ा में कैसे आ गया। प्रभु यीशु ऐसे ही देखते हैं हमें। अरे इसका जीवन तो बहुत अच्छा था, ये फटा कपड़ा कब पहन दिया, इसका जीवन ऐसे क्यों हो गया, क्यों इतना बेकार हो गया? क्योंकि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, ऐसा नहीं है बीत रही है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमेन। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, सब कुछ, हिंसा, कपट, लालच, झूठ, एक दूसरे से बैर, ये सब कुछ बीत गया है। फिर भी वापस हम लेकर आ रहे हैं, है ना। ये गलत है। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने अपने वचन के द्वारा तुम्हें नया जीवन दिया है। आमेन। बाइबल में लिखा है कि वचन कौन है? परमेश्वर। और वचन क्या बन गया? देहधारी हुआ। आमेन। वो वचन शरीर बना और वो शरीर क्रूस पे टंगा। उस क्रूस पे जो दुख, वो तकलीफ हमारे पापों के लिए सहा गया, हमारे पापों के, हमारे गुनाहों के लिए यीशु ने अपना जान दिया मेरे प्रियो, क्योंकि वो वचन देहधारी बना। हालेलुया। और वो देहधारी इसीलिए बना ताकि हमें नया जीवन मिल सके, और आज उन्हीं के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। आज आइए हम अपने नए जीवन को बनाए रखें।
अगर आज आपके जीवन में कहीं भी किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो चिंता मत कीजिए। He is pruning you, वो आपको छांट रहा है ताकि आपका जीवन और भी अच्छा बने। प्रभु में और भी बने रहिए, ओ थामे रहिए, क्योंकि नेक्स्ट मेरा पॉइंट है remaining and abiding in the vine। 15:4 में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे। आमेन। क्या लिखा है? बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है कि अगर तुम मुझ में बने हो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। आमेन। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। कितना सुंदर है ना। আমরা যদি প্রভুতে আছি, প্রভু आमेन, बहुत सुंदर है। परंतु प्रभु में हम बने कैसे रह सकते हैं, ये सवाल है। How we will abide in him, हम कैसे उसमें बने रह सकते हैं, कैसे? Any example? हम प्रेयर करके बने रह सकते हैं, हम फास्टिंग करके बने रह सकते हैं, हम प्रभु के घर में जो रोज हर संडे हम आते हैं, हम उसके द्वारा प्रभु में बने रह सकते हैं। हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के द्वारा हम प्रभु में बने रह सकते हैं। हम दूसरों को उस दलदल से निकाल के एक अच्छे जगह में जो हम लाते हैं, हम उसके द्वारा प्रभु में बने रह सकते हैं। आमेन। हम प्रभु में बने रहना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। आज हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं हम बने रहे, हम प्रभु में बने रहे, पर उसके लिए हम दूसरों को धक्का देते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं, इसके द्वारा हम प्रभु में बने नहीं रह सकते। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं। आमेन। कभी आपने देखा है ऐसा पेड़, ऐसा पेड़ आपने देखा है? এরকম কোনো গাছ দেখেছেন কি একটা আমের গাছ আছে, ওই ডালি আপনি কেটে দিয়েছেন, जस्ट बबूल हुआ है उसमें, है ना, उसमें बस बबूल हुआ है और आपने वो डाली काट के बगल में रख दिया है, उसमें आम आ जाएगा? नहीं। हाँ, कभी देखा है ऐसा पेड़ आम आ गया उसमें? बाइबल में लिखा है कि वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसीलिए उसको क्या करना होगा? उस पेड़ में बने रहना होगा। अगर आज आपको सच में फल चाहिए तो प्रभु में बने रहना होगा। पर उस याद रखना, पेड़ के ऊपर अत्याचार होगा। आमेन। उस पेड़ के ऊपर अत्याचार होगा, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगी, बारिश भी आएगी, धूप भी बहुत तेज होगा, और जब फल आएगा तो लोग पत्थर भी मारेंगे, है ना। हम पत्थर कहाँ मारते हैं? जिस पेड़ में फल हो। जिस पेड़ में फल नहीं है ऐसे ही ढील मार रहे हैं। क्या तोड़ रहा है? एमनी मार्च। कभी देखा ऐसे लोग? मैं तो देखो एक पागल आदमी, मैं देखा हूँ एक आदमी को, पागल आदमी, एक चूल इतने बड़े बड़े, इतना डंडा लेकर जा रहा है, पता नहीं मोटर में क्या बंधा है, उसके साथ भूख लगा है, पत्थर से मार रहा है पेड़ में। उस पेड़ में फल था, उसको भी मालूम है कि किस पेड़ में फल है, तो हमें भी मालूम है। तो हमें भी अगर कोई पत्थर से मार रहा है तो फल है हमारे, है ना। कोई हमारे विरुद्ध में बात करता है तो यानी हमारे जीवन में फल है। कोई हमारे पीछे लगा है तो हम कुछ वैल्यू रखते हैं। आमेन। कोई हमारी बुराई करता है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। आमेन। आप देखना, अभी का एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है? अगर कोई भी स्टार, चाहे वो फिल्म स्टार हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, अगर उसका नाम अगर कहीं भी नहीं आ रहा है, अचानक आप देखना अचानक उसका नाम आ जाता है सब जगह। क्यों? कि वो कोई भी ऐसा कंट्रोवर्सी वर्ड बोलता है, कुछ स्टेटमेंट देता है, वो देखता है बाबा मने की न्यूज़े আমাকে দেখাচ্ছে না, क्या करेंगे? कुछ ऐसा पगलामी करता है वो, कुछ ऐसा तिगड़म लगाता है, और उसके बाद देखता है अचानक, हाँ इस व्यक्ति ने आज अचानक ऐसा बोल दिया। अब 2 दिन न्यूज़ चल रहा है उसका, बोला चलो मेरा नाम आया। ये ट्रेंड कोई, तो लोग अपने नाम को इस तरह से चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का चीज अलग है। प्रभु क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम क्या लाओगे? आमेन, हालेलुया। अगर हम प्रभु में बने रहें,
अगर हम परमेश्वर में बने, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर तुम मुझ में हो तो फल है, अगर तुम मुझ में नहीं हो तो फल नहीं है। अगर आप परमेश्वर में हो तो आप जो भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर उसको सुनेगा। आमीन। आप जो भी परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर उसे जरूर देगा। आमीन। You need to abide in God. You need to remain in Him. Then you will be fruitful. आमीन। Amen. Amen. In today's world, people think, I will be telling you, Book of John, chapter 8 और उसका 31, 32 अभी हमने पढ़ा कि जो प्रभु में बना रहेगा वो क्या बनेगा? चेला बनेगा। परंतु दूसरा यूहन्ना उसका 1:9 में क्या लिखा है? आगे बढ़ जाता है ना? क्या लिखा है? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और Amen. Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. And the one who abides in the teaching and he has both the Father and the Son. Amen. बहुत लोगों को लगता है बहुत सुंदर वचन है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, Amen, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। बहुत लोग चर्च नहीं आते हैं। एक समय चर्च में आते थे, अभी नहीं आते। क्यों नहीं आते मालूम है? अरे मेरा नौकरी लग गया है, मैं बहुत बिजी हो गया, है ना? जब चर्च में आए थे तो प्रार्थना कर रहे थे, मुझे आके बोल रहे थे सर प्लीज प्रे फॉर अस। व्हाट इज योर प्रेयर रिक्वेस्ट? आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है? আমি অনেক দিন থেকে চাকরি চাইছি, একটা ছোট মোটো একটা কাজ করছি কিন্তু ওইখান থেকে আমি শিফট होते চাইছি। तो परमेश्वर ने वहां उनको आशीष दिया, मतलब अभी उनके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वे आगे बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं? आगे बढ़ गए। परंतु बाइबल में क्या लिखा है उन लोगों के लिए? उनके संग कौन नहीं है? परमेश्वर। उनके साथ कौन नहीं है? परमेश्वर। परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को छोड़ के आप आगे तो बढ़ सकते हो परंतु आपके संग कौन नहीं है? परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हमने बहुत कुछ जान लिया है, अब हमें कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है। परंतु आगे तो आप बढ़ जाओगे। आमेन। आप आगे तो बढ़ जाओगे परंतु आपके संग कौन नहीं होगा? परमेश्वर नहीं होगा। अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तो हर तूफान का सामना करने के लिए वो आपकी मदद करेगा। हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए वो आपका हेल्प करेगा। आमेन। बहुत लोगों को लगता है कि I already achieve everything, मैंने वो सब कुछ पा लिया है, now I don't need God। अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे परिवार की जरूरत है। अचानक लोगों को फैमिली का याद आता है। इतना दिन याद नहीं आता, अचानक आता है, ये बाबा हमारा परिवार, हमारा फैमिली, तो गॉड का क्या होगा? इसीलिए हम परिवार को खो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर नहीं है। अब करो कंट्रोल अपने परिवार को, अब संभाल लो अपने परिवार को अपने से। उसके बाद ऐसे कितने लोग आते हैं मुंह बनाकर मेरे पास, बोलते हैं सर কাজ চলে গেছে কি করব? रुक चाय पीने दे। तुम रो, हम क्यों रोएंगे? हम तो प्रभु में हैं। तुमने प्रभु को छोड़ा है। आज परमेश्वर अगर आपको आगे बढ़ाता है इसका मतलब नहीं कि प्रभु को बोलेंगे टाटा, नतून रास्ता टाटा। यू कैन डू टाटा, नो प्रॉब्लम, पर प्रभु आपको आटा में मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। When you think God is very casual thing, आप आजकल लोग परमेश्वर को बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत आसान लेते हैं लोग परमेश्वर को। People take God very easy। कुछ भी गलती करो प्रभु को कुछ चढ़ावा चढ़ा दो और जाकर रो दो और प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरा दुआ सुन लेगा, प्रभु माफ कर देगा आपको। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु आपको शास्ति जरूर देगा क्योंकि वो अच्छा किसान है। प्रभु आपको प्रून जरूर करेगा। आमीन। अगर आपको लगता है कि आप प्रभु से दूर होकर बढ़ जाओगे, आप बढ़ोगे परंतु स्टेबल नहीं रहोगे। आमीन। आप ऊंचाई में तो जाओगे
परंतु गिरोगे बहुत डेंजरस। आमेन। आमेन। अगर आपको बढ़ना है तो प्रभु में रह के बढ़ो। आमेन। अगर आपको कुछ करना है तो प्रभु में रह के करो। आमेन। आमेन। इन दिस वर्ल्ड मेनी किंग्स, बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे राजा। आप इतिहास के पन्ना करवाया, कितने राजा ने कहा यू नीड टू वर्शिप मी, क्योंकि जब वो लोग युद्ध जीतते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ओह मैंने इतने लोगों को हरा दिया, अब मैं ही राजा बनूंगा, तो राजा बन जाते हैं। अब मैं ही गॉड बनूंगा, वो गॉड भी बन जाते हैं। परंतु हम जानते हैं ऐसे राजा का मौत कैसा होता है। आमेन। परंतु एक राजा ऐसा आया इस संसार में, एक ऐसा व्यक्ति आया जो गौशाले में जन्म लेता है। आमेन। और जब वो जन्म लेता है तो अच्छे अच्छे राजा डर जाते हैं। आमेन। वो राजा जब इस संसार में आया मेरे प्रियो, तो उसने कहा कि जिसने मुझ पे विश्वास किया उसके पास अनंत जीवन है। आमेन। हालेलुया। और वो एक ऐसा राजा था, वो मरा तो जरूर परंतु तीसरे दिन जी उठा, और उसने वादा किया है वो फिर से आएगा। आमेन। हालेलुया। आज आप जितना भी आगे बढ़ जाओ, जितना भी आगे बढ़ जाओ, आप चर्च से आगे नहीं बढ़ सकते हो। कितने लोग विश्वास करते हैं? जस्ट लिफ्ट योर हैंड एंड से आमेन। आमेन। आप जितना भी आगे बढ़ जाओ, आप चर्च से आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु चर्च को लेने आएगा। तो यही पहला है। आमेन। यही पहला है। क्यों पहला है मालूम है? क्योंकि यीशु का सबसे पहला प्यार उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया है। आमेन। हमसे आगे कोई नहीं जा सकता। आमेन। अगर किसी को लगता है कि हम आगे, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, चाहे जितना भी तूफान आए, जितना भी परेशानी आए, जितना भी विरोध आए, जितना भी लोग आपके बारे में कुछ बोले, किंतु अभी प्रभु तो स्थिर आज, हम परमेश्वर में स्थिर हैं। आपको परमेश्वर आगे लेकर जाएगा। You will be fruitful. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम वापस से मुन्ना में आए। उसका 15 का John 15 उसका 5 में क्या लिखा? Apart from me you can do nothing. Amen. हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? कोई बोलता है आमी सब करे नेबो, आमी पारबो। आमेन। बहुत लोग बोलते हैं आमी पारबो, I will do that, I will do it, I will complete the work। पर हमें पता ही नहीं कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। आमेन। मैं एक बार एयरपोर्ट में जा रहा था, तो एयरपोर्ट में मैं लाइन में खड़ा था, बोर्डिंग चल रहा था। आई थिंक आई वाज गोइंग बैंगलोर समवेयर आई थिंक। तो बोर्डिंग चल रहा था, मैं पीछे था। एक जवान लड़का 27 एज का होगा लड़का, सामने खड़ा था, बहुत अच्छा एकदम बैग एंड ऑल। अचानक खड़ा होते होते कैसे गिर गया अचानक, तो गिर के सब बोले क्या हो गया इसको, क्या हो गया? पता नहीं, इतना छोटे बच्चे, एक लड़के को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और संगे संग उसको हॉस्पिटल लेके गया। पता नहीं वो बचा कि मर गया मालूम नहीं, पर प्लेन तो चला गया। हम तो बैंगलोर चले गए, उसके लिए कोई नहीं रुकेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको नहीं मालूम, शायद वो प्लानिंग करके जा रहा होगा कि हम बैंगलोर जाएंगे, इन लोगों से मिलेंगे, ये मीटिंग होगा मेरा ये होगा, जो भी होगा उसका काम, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। सब कुछ सही था, सब कुछ पास कर लिया, है ना? चेकिंग वेकिंग सब पास कर लिया, बोर्डिंग हो गया। अब बस अब वो जाने ही वाला, अब ढुकने वाला है।
परंतु वो नहीं जा पाया। अगर आपको लगता है कि कल हम अपने से सब कुछ कर लेंगे, आपको मालूम नहीं कि कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं। Amen. You don't know this. आप नहीं जानते हो कि कल का दिन क्या होगा। इसीलिए प्रभु कहता है तुम मुझे छोड़ कुछ नहीं कर सकते। Amen. तुम मुझे छोड़ कुछ नहीं कर सकते। Apart from me you can do nothing. Amen. आप देखिए यूहन्ना उसका 5:19 में क्या लिखा है। यूहन्ना John chapter 5 verse 19। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु भी अपने से कुछ नहीं कह रहे या कह रहे हैं, है ना। यूहन्ना उसका 12:49 में भी आप बाद में पढ़ सकते हैं कि यीशु भी कुछ नहीं बोलता है अपनी मर्जी से, सब पिता की मर्जी से बोलता है। आमीन। परंतु आज हम अपने से बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। पिता नहीं बोल रहा है परंतु फिर भी हम बोलते हैं। पिता किछु ही बोल चले कि तारपरो हमरा बोलची, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़बोला, है ना। जो चीज आपके समझ में नहीं आता है हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें सरेंडर होना चाहिए ताकि हम सीख सके उससे। आमीन। Apart from me you can't do anything. आप प्रभु के बगैर कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप पैसा कमा सकते हो परंतु शांति नहीं कमा सकते। आमीन। ये प्रभु ही देगा। आमीन। आप अच्छा घर खरीद सकते हो परंतु अच्छा परिवार नहीं खरीद सकते। आमीन। आज बहुत सारे घरों में बहुत सब कुछ है परंतु उस घर में प्यार नहीं पाया जाता है। उस घर में एक दूसरे का लिए रेस्पेक्ट नहीं है, उस घर में एक दूसरे का सम्मान नहीं है। मेरे प्रियो, यू कैन बाय एनीथिंग, आप बहुत सारी चीजों को खरीद सकते हो परंतु कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ परमेश्वर के पास है। आमीन। आज बहुत सारे घर खंडर बन गए हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ। मैंने बहुत पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि एक भाई ने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा, बहुत बड़ा घर खरीदा, और खरीदने के बाद वो बाजार में गया और बाजार में जाकर उस आलू वाले को बोलता है कि मैं अपना ये बंगला बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो बगल में एक व्यक्ति था, वो भी आलू ले रहा था, तो वो बोल रहा है बेचना चाहता है, वो ध्यान से सुन रहा है। बोला मैं ये घर जो 5 करोड़ का घर है एकदम रोड के ऊपर, विशाल बहुत बड़ा बंगला बनाया था उसने, गार्डन वार्डन सब था उसमें, मैं ये पूरा दे दूंगा सिर्फ 5 लाख रुपया में। हाँ, तो वो बगल में था, तो बोला हम लेंगे आपका, हम बेच देंगे आपको, कल ही दे देंगे आपको, पर मेरा एक शर्त है, मेरा एक शर्त है, একটা কন্ডিশন আছে। তো বলছে আমি সব কন্ডিশন মানবো, আপনি যা বলবেন আমি সব মানবো, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझको बोलो मैं ले लूंगा। बोला कंडीशन मानबेन तो? बोला है मानबो, काल के हमारे बाड़ी थे आसपे। बोला ठीक है। वो कल गया उसके घर 5 लाख रुपया लेकर, और उसके बाद बोला ठीक है पेपर रेडी करो, ये करो। बोला देखो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पूरा घर आपका, एक पूरा বাড়ি আপনার, সবকিছু আপনার, কিন্তু এই যে হল রুম আছে, এই हॉल में मैं ब्रेक ठोकना चाहता हूँ, और इस ब्रेक को ठोककर एक बैग रखूंगा, और वो बैग मैं सब समय रखूंगा, आप मुझको कभी रोक नहीं सकते हो। ये उस पेपर में लिखा होना चाहिए। वो भावचे 5 करोड़ का प्रॉपर्टी 5 लाख में, और एक ब्रेक मांग रहा है। हाँ, कहाँ साइन करना है बोलो? 5 लाख में खुदा साइन करो बोलो। सब साइन, पूरा साइन कर दिया। उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद प्रॉपर्टी हैंडओवर हो गया, चाबी हैंडओवर हो गया, वो चला गया। पूरा फैमिली पीसफुली, हाँ, उसका छोटा छोटा बच्चा कभी वो झुपड़ी में रहता था, पूरा घर में घूम रहा है, पूरा घर में, वाह क्या मजा आ गया, ओह जबरदस्त, क्या है, हाँ गार्डन में घूम रहा है, फूल तोड़ रहा है, जो कर रहा है पूरा मजा आएगा। तो ये लोग 2 दिन बहुत एंजॉय किया, वाह क्या घर मिला है। 3rd डे वो व्यक्ति आया, वो बैग लेकर, बेल बजा, ओह आप आए, चाय पीजिए। नो मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा।
शर्त के अनुसार मैं अपना वो बैग वहां लगाना चाहता हूँ। बोला हाँ लगाएंगे। वो लगाया। फिर दूसरे दिन आया, फिर उस बैग में और भी कुछ डाला। फिर तीसरे दिन आया, उस बैग में और भी डाला। वो बैग, उस बैग में जो सड़ा मछली होता था वो डालता था। रोज डालता था, रोज डालता था, रोज डालता था। डालते 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 ये लोग ना रह पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। शर्त है 10 दिन के बाद वो व्यक्ति बोलता है ये आपका घर लो। हमें तो पौनी आता है इस घर में। पूरा घर कितना स्प्रे मारे, क्या मारे, ऐसा आप डालते हो। आप अपना घर वापस ले लो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीजें तो आसानी से मिल जाती है, परंतु शैतान जो कंडीशन देता है ना हमारे अंदर, वो हमारे परिवार को खत्म कर देता है, वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। हम बहुत अच्छा घर बनाते हैं, परंतु वो सड़ा बैग, वो छोटा सा कील हमारे घर में है, जिसके कारण आज हमारे परिवार में शांति नहीं है। हम अपने घर में शांति से सो नहीं पाते हैं, हम अपने घर में रह नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं बाहर रहना ही अच्छा है, घर में आते हैं ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा कील हमें परेशान कर रहा है। अगर आपको लगता है आप घर खरीद सकते हो परंतु शांति नहीं खरीद सकते, आप प्रेम नहीं खरीद सकते, आप रेस्पेक्ट नहीं खरीद सकते हो, आज हमें यीशु की जरूरत है अपने परिवार में। अगर यीशु हमारे परिवार में रहेगा, इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं, पैसा कमा लोगे परंतु उस पैसे को रख नहीं पाओगे। आमीन। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन कौन से धन पाएंगे? दुष्टों का धन, है ना। दुष्ट ने जो दुष्टता से कमाई है वो नहीं रख पाएगा, परंतु धर्मियों के पास आएगा वो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी करो परमेश्वर के संग रहकर करो। आमीन। যা কিছু করবেন প্রভুকে নিয়ে করবেন, আপনি দেখবেন ঈশ্বর আপনার জীবনে আরো আশীর্বাদ দেবে। परमेश्वर आपके जीवन में और भी आशीष देगा। प्रभु आपके परिवार में आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। That's why যিশু বলছেন apart from me you can do nothing। যিশু বলছে আমারও সাহস ছিল না যখন আমি পৃথিবীতে ছিলাম, আমি যা কিছু বলেছি আমি পিতা অনুসারেই বলেছি। আমেন। আমাকে পিতা যা বলেছে আমি এরকমই সবকিছু করেছি। आमेन। मेरे पिता को छोड़ के मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। इवन ऐसा भी हुआ कि मुझे मौत का सजा मिला, उसके बाद मैंने पिता से कहा कि पिता अगर तेरी इच्छा यही है तो होने दे। आमेन। अगर तेरी इच्छा है तो होने दे। If you want to prune me, prune, no problem। अगर तू मुझे छाटना चाहता है जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में रिवाइवल आए तो कर दे प्रभु। आमीन। हालेलुया। कभी-कभी आपको दुख से गुजरना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है, इसका मतलब है कि प्रभु आपके जीवन में गवाहियां पैदा कर रहा है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, प्रॉब्लम का सामना करते हैं, बीमार हो जाते हैं, कष्ट में रहते हैं, इसका मतलब God is going to use you in a mighty way। हालेलुया। इसीलिए यीशु कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। आपका ज्ञान ही रहेगा, आपका इन्फ्लुएंस ही रहेगा। आमीन। परंतु इस इन्फ्लुएंस में आशीष कौन डालेगा? परमेश्वर। आमीन। आपके ज्ञान में आशीष कौन डालेगा? आमीन। अगर वो रहेगा तो आपका ज्ञान आपको सफलता देगा। आमीन। अगर वो रहेगा तो आपका इन्फ्लुएंस आपको शांति देगा। आमीन। My last point is 15:16। 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। आज ऐसा मत बोलना कि मैंने प्रभु के ऊपर उपकार किया है ना। हाँ, हम चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए
हम 50,000 रुपया दिए। किसको बोला आपने? किसको बोला होगा? फिर और भी 2 आदमी को बोला है। हम ना चर्च बिल्डिंग के लिए हम कितना दिए? 50। फिर और एक जगह जाके बोल रहे हैं हम ना चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए कितना दिए? 50। तो प्रभु बोलता रख तेरा 50 सड़ा बैग तेरा, है ना? प्रभु को ऐसा चीज नहीं चाहिए। जो गुप्त में देता है परमेश्वर उसे आशीष देता है। सुनो सुनो सुनो, रिवर ऑफ लाइफ एजी चर्च में मैंने 1 लाख रुपया दिया। कैसा लगा ये? हाँ? तो प्रभु इस स्वर्ग में बोलता है सुनो सुनो सुनो, एक पाखंड घूम रहा है। डैनियल पॉल को बोलो उसका पैसा लौटा दे, क्योंकि उससे हम 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे उसको बीमार करके। क्यों? क्योंकि वो सोचता है प्रभु भिखारी है। प्रभु क्या भिखारी है? नहीं। आपने प्रभु के ऊपर एहसान किया है? नहीं। अरे हमने नहीं चुना उन्हें, उसने हमें चुना है। आमेन। हम तो गुनाहों में पड़े थे। We were in the darkness. We were in the pitch darkness, but He brought us from the darkness into the light. Hallelujah. প্রভু আমাদেরকে এই অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছে। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। He chose us, उसने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना है। आमेन। कभी भी ऐसा घमंड मत करना कि मैं कलीसिया में कुछ करता हूँ, प्रभु को नहीं चाहिए ऐसा करना। कभी भी 10 आदमी को, या बाइबल में क्या लिखा है, जो तुम्हारा ये हाथ, दाहिना हाथ अगर प्रभु को दे तो कौन नहीं जानना चाहिए? है ना? कौन नहीं जानना चाहिए? यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जानेंगे, ये हाथ भी जानेगा, ये भी हाथ जानेगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका पड़ोसी, आपका आसपास के लोग भी नहीं जानना चाहिए। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो आपको गुप्त में देख रहा है। आमेन। और जब वो आपको आशीष देगा, वो गुप्त में नहीं होगा, वो दुनिया के सामने देगा। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना करे या प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाएगा हमेशा, छुटकारा पाएगा, छुटकारा पाएगा हमेशा, छुटकारा पाएगा। आराधना में है छुटकारा,
मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दे मसीह। यीशु तो हमारे पास आया, क्या आज हम यीशु के पास आना चाहते हैं वापस? क्या हम यीशु से दूर हो गए थे किसी जगह? क्या वो डाली उस पेड़ से अलग हो रही थी क्या? क्या कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे थे? आज आइए हम अपने आप को पश्चाताप कर हृदय को लेकर आए और प्रभु के सामने अपने आप को मान ले और कहें कि प्रभु मैं तेरे पास वापस आता हूँ, ताकि हम चाहते हैं प्रभु कि मेरे घर में फल हो, मेरे बच्चों के जीवन में फल हो। हम थक गए हैं प्रभु अपने परिवार को देखते देखते, हम थक गए हैं अपने परिवार को संभालते संभालते। We are tired enough of God to control our family, to handle our family. We are tired enough to build our life, oh God. We are tired enough to achieve the things which we want, oh God. We are tired enough to control sometime our life, oh God. हम थक गए हैं प्रभु, हम थक गए हैं। अगर आप थक गए, आपको ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो आपको फिर से ऊंचाई तक लेकर जाए, तो आइए यीशु के पास आए, फिर से उसके पास आए, फिर से प्रभु के पास आए, फिर से अपने गुनाहों को मान ले। हम हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हुआ होगा, हो सकता है रोज बाइबल पढ़ते होंगे, परंतु आज हमारा व्यवहार चेंज नहीं हो रहा है, आज हमारी बातचीत चेंज नहीं हो रही है। आज प्रभु के पास वापस आए।
है वो बहुत फलदायक है। आज परमेश्वर हमें बहुत फलदायक बनाना चाहता है। आज हमारे परिवार में आनंद, खुशी, शांति, प्रेम देना चाहता है। यीशु ने कहा, मैंने ये सारी बातें इसीलिए कही ताकि तुम आपस में प्रेम रखो। बाइबल बताती है तुमने पहला सा प्रेम खो दिया है। जो पहला सा प्रेम मसीह में था वो तुमने खो दिया है। আগের মতন যে ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিল সেটা মনে হয় কোন একটা জায়গায় হারিয়ে গেছে। ऐसा लगता है कि वो सेवा आपके जीवन से खत्म हो गई है। ऐसा है, ओ प्रभु आज आपको देख रहा है। यीशु ने कहा कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज आइए हम चुने हुए के समान हमारा व्यवहार हो। आज आइए हमें देख के लोग सही हो जाए। आज आइए हमें देख के जो ठोकर खाए हुए इंसान है वो भी ठीक हो जाए। हम यीशु के पास पश्चाताप का दिल लेकर आए। We praise you, Father। भाई संग साहब सामने आए तेरे प्रभु यीशु मेरे मसीह तेरे पापों के लिए उतारे दे मसीह मेरे पापों के लिए उतारे दे मसीह। मैं आता हूँ यीशु के पास कुछ हालेलुया। पिता धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, तेरा
पापों के लिए बहा के तूने स्वर्ग धाम को छोड़ के आया, हमारे अपने सुख और आराम को छोड़ के आया हम पापियों के लिए पिता। तूने हमसे पहला प्रेम किया प्रभु, हम पापियों से प्रेम किया जो हम हर दिन हर समय पाप करते पिता। माफ कर दे पिता, माफ कर दे प्रभु, तेरे अद्भुत प्यार के लिए पिता। तूने पिता हमारे पापों के लिए अपने लहू का दाम चुकाया है पिता। हमें ज्ञान दे पिता, हमें अपने बुद्धि से परिपक्व कर प्रभु, ताकि तेरे प्यार को समझ सके पिता, हम गुनाह ना करें पिता। हो प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता। पिता हम तेरे डाली से पिता जुड़ के रहना चाहते हैं पिता। पिता हम बिखर जाते हैं पिता, और पिता हम जहाँ तेरा हाथ छोड़ते हैं पिता, और पिता हम दलदल में फंस जाते हैं, गुनाह में दब जाते हैं, और हमारा जीवन नष्ट होने लगता है पिता। पर तू इतना महान परमेश्वर है कि हमारे नाम को लेके बुलाता है, लौटा लौटा वास्ता है तेरा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर से तू हमें बाहर निकालता है, हमें अद्भुत आशीष देता है, अपने राज्य में आगे बढ़ाना चाहता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ पिता हम क्षमा चाहते हैं पिता, तेरे राज्य तेरे वचन के प्रति अगर हमने कुछ गलत किया है पिता, जाने अनजाने में तेरा दिल दुखाया है पिता, हमें माफ कर पिता। अपने गुरुजनों का अगर दिल दुखाया है पिता, माफ कर दे पिता। फिर से तूने अपने बच्चों से बात किया है पिता कि हमें पिता तेरे साथ जुड़ के आगे चल रहा है पिता। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता आज हम बढ़ रहे कहीं भी, लेकिन तेरे बिना हम गिर जाएंगे पिता, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। और तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें फिर से पिता अपने आप को जांचा है पिता, कि हम अपने आप को जांचे ताकि हमारे ऊपर पाप और दोष ना लगे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं अपरंपार प्यार के लिए पिता। पिता हम पे इतना दया करना पिता, हम सभी विश्वासियों के ऊपर इतना दया करना पिता, कि ये जो दोबारा जीवन तेरे लहू के द्वारा जो मिला है पिता, हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक पिता तेरे नाम को जप सके पिता, और कह सके यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा पिता है। धन्यवाद करते हैं अपने प्यार के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। हो पिता मैं कम बोलना चाहता हूँ पिता, पर तू ज्यादा समझ लेगा पिता। मैं जो बोलना चाहता हूँ पिता तू समझ लेगा मेरे परमेश्वर। अरे भाइयों के हृदय में तू पिता बात कर रहा पिता, तू हरेक को दिलों को तू समझ रहा पिता। पिता हमारे कमजोरियों में तू आ पिता, और तेरे वचन के माध्यम से हरेक कमजोरियों को तू दूर कर दे पिता, ताकि हम पवित्र रूप से पिता तेरे राज्य में आगे बढ़ सके पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पिता आज इस भवन में पिता तेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जिन जिन हाथों ने पिता दान दशमान तेरे भवन में दिया पिता, दान दशमान में तू आशीष कर मेरे परमेश्वर। और पिता तूने हमारे कलीसिया के लिए जो इतने सालों के बाद जो जमीन दिया है पिता, अभी भी उस जमीन में बहुत सारे काम बाकी है पिता। तेरा भवन निर्माण के काम रुके हुए हैं पिता। पिता मैं विश्वास करता हूँ तू हाथों को खोलेगा, उन हृदय को खोलेगा पिता, बहुतायत की आशीष देगा, ताकि तेरा भवन जल्द से जल्द निर्माण हो सके, हम लोग खुले हृदय से तेरी आराधना स्तुति कर सके पिता। तू दया करे, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज जितने ने तेरे वचन को सुना पिता, प्रत्येक को तूने भरा है और आशीष किया है। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, अगर मैं एक राई के दाना भी अगर विश्वासपूर्ण हूँ मेरे परमेश्वर, तो मैं असिस्टेंट पास्टर के लिए दुआ करता हूँ पिता, तू इन्हें आशीष कर पिता।
अपने राज्य में और भी मजबूती से उन्हें आगे बढ़ा पिता। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया को जो तूने इतना अच्छा अगुआ दिया है, इतना अच्छा दान दिया पिता, जो अपने पिता शरीर का चिंता नहीं करते पिता, वो पिता तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए दिन और रात सोचते रहते हैं पिता। तुमने इनके सेहत को पिता अच्छा रख पिता, भला रख पिता, और भी नई नई योजनाओं ज्ञान से बुद्धि से परिपक्व कर पिता, ताकि हम पिता तेरे राज्य में उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ के विश्वासपूर्ण रह सके पिता। दया कर यीशु, दया कर, प्रत्येक को तू आशीष कर पिता, प्रत्येक को मेरे परमेश्वर। अगर कुछ भूल हुआ है पिता हम सभी से फिर से एक बार माफ कर पिता, दया कर मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ भरे नाम से चाहते हैं, तो सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह भागों में लौट करना है, तब तक इस कलीसिया के प्रत्येक बुजुर्गों के संग, प्रत्येक माओं के संग, प्रत्येक भाई और बहन और बच्चों के संग बनी रहे। हम सब मिलके एक साथ बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।